Hello students, in the previous lecture we discussed proportion and questions based on proportion, and today we are going to discuss about unitary method. So students, at first let us understand what is unitary method. The method in which first we find the value of one unit and then the value of required number of units is known as unitary method. ऐसा मेथड जिसमें पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दैट मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड. वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर. हियर टाइम इज गिवन. हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय करण इज गिवन and here distance traveled by Kriti is given. At first given that distance traveled by Karan in 2 hours is 8 km and distance traveled by Kriti is 6 km. After that, distance traveled by Karan in 2 hours is 8 km, then distance traveled by Karan in 1 hour is 4 km. How you got this? That 2 hours में 8 km, then 1 hour में 4 km. When you will divide 8 by 2, then you will get 4. In similar way, you can find that in 1 hour, how much distance Kriti will cover. She covers 6 km distance in 2 hours. Then in 1 hour, she will cover 6 upon 2. That is 3 km distance. Now, here we found that in 1 hour, Karan will cover 4 km distance and Kriti will cover 3 km distance. अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो अब हम मेनी यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे 4 आवर्स में करण कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 1 आवर में 4 किलोमीटर, देन 4 आवर्स में 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 16 किलोमीटर डिस्टेंस Karan will cover. And here in 1 hour 3 kilometer distance Kriti will cover. Then in 4 hours she will cover 3 multiply 4, that is 12 kilometer distance. Okay, let us understand with the help of examples. Your example first is given that if the cost of 6 cans of juice is rupees 210, then what will be the cost of 4 cans of juice? अगर आपको 6 cans of juice दिया है rupees 210 का, तो आप सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 can of juice. जब आपको कॉस्ट ऑफ 1 can of juice पता चल जाएगा, तो आप 4 can of juice फाइंड आउट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 can of juice कैसे फाइंड आउट करोगे, rupees 210 को डिवाइड कर दोगे 6 से. जब आपको कॉस्ट ऑफ 1 can of juice पता चल जाएगा, तो उसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ 4 cans of juice. So how we will solve this question? You will write the solution. Cost of 6 cans of juice, that is equal to, it is given rupees 210. Therefore, cost of 1 can of juice, it will be rupees 210 upon 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30. तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई कि 1 can of juice का कॉस्ट 35 रुपीज है. नाउ वी विल फाइंड, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, कितने का फाइंड आउट करना है, 4 cans का फाइंड आउट करना है. 4 cans of juice, that is equal to rupees 35 मल्टीप्लाई विथ 4. तो हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 हो जाएगा कैरी, 3 4 जा 12, 12 to 40, तो आ जाएगा 140 रुपीज. दस कॉस्ट ऑफ 4 cans of juice is rupees 140. See the next example. The next example is given that
A motorbike travels 220 km in 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? आपको दिया है कि 220 किलोमीटर ट्रेवल करती है 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। और जब आपको 1 लीटर का पता चल जाएगा तो आप जो है फाइंड आउट कर लेना कि हाफ लीटर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो 1 लीटर का पता चल जाएगा, हाफ लीटर का पता चल जाएगा, तो 1.5 लीटर का आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। या 1.5 लीटर का पता करने के लिए आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो चलिए देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। वी विल राइट द सोल्यूशन एंड आफ्टर दैट वी विल राइट इन 5 liters of petrol motorbike can travel 220 kilometer. In 5 liters of petrol motorbike can travel 220 kilometer. Therefore in 1 liter of petrol motorbike travels, that is equal to 220 upon 5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20, 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा ये 20, 5 4 जा 20, तो आ जाएगा 44 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब आप फाइंड आउट कर लीजिए 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वी विल राइट हियर देयरफॉर इन 1.5 liters motorbike travel, that is equal to 44 मल्टीप्लाई विद 1.5 किलोमीटर। तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा 15 4 जा 60, जाएगा कैरी, 15 4 जा 60, 60 एंड 6 66। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम राइट साइड से 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर। आंसर कितना आ गया? 66 किलोमीटर। सो वी विल राइट दैट thus the motorbike can travel 66 kilometer in 1.5 liter of petrol. Let us see the next question. The third question is, if the cost of a dozen soaps is rupees 153.60, then what will be the cost of 15 such soaps? आपको कॉस्ट ऑफ 1 डजन सोप दिया है, इट मीन्स 1 डजन सोप में 12 सोप्स आएंगे, तो 12 सोप्स का कॉस्ट आपको पता है। यहाँ से आप 1 सोप का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, और जब आपको कॉस्ट ऑफ 1 सोप पता चल जाएगा तो आप कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स फाइंड आउट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो देखिए सॉल्यूशन हम राइट करते हैं, कैसे करेंगे। वी नो दैट 1 डजन इक्वल टू 12, सिंस cost of 12 soaps is equal to rupees 153.60. Therefore, cost of 1 soap equal to rupees 153.60 upon 12 हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 1 जा 12, यहाँ से 3 जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा 24, 33 में से 24 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, ये 96 हो जाएगा। फिर 12 8 जा 96 होता है और यहाँ आ जाएगा 0, तो हमारा आ जाएगा 12.8। 0 को आप नहीं राइट करोगे तब भी वही वैल्यू रहेगी। नाउ अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 सोप फाइंड आउट हो गया है, तो हम कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। So we will write here, therefore cost of 15 soaps equal to rupees 12.8 multiply with 15। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? मिल जाएगा 1920, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो राइट साइड से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा रुपीज 192। Thus, cost of 15 soaps is rupees 192. So, students, we know that practice makes us perfect.
Try to solve these questions. Your classwork questions are given here, and after solving the questions, you can check your answers from here. Thank you for watching and see you in the next video.